Good afternoon, all. I welcome you to the second session of the day. It is our immense pleasure to have with us Dr. Ajay Yadav. Sir is Registrar and Scientist Mushroom. Hello. Hello. Please keep your microphones on mute. I welcome you all again to the second session of the day. Uh, it is our immense pleasure to have with us Dr. Ajay Yadav. Sir is Registrar and Scientist Mushroom, Maharana Pratap Horticultural University, Karnal, Haryana. And Dr. Ajay Yadav, sir, has chosen the topic a commercially viable button mushroom production unit and its functioning. Yes, yeah. Sir, you're audible. You please unmute yourself so that you will be audible. Uh, Thank you, Majid ji, Yes, for sir, you're audible giving as me well as second visible. opportunity. Yeah, please start, sir. Yeah. Thank you to everybody to hear me again. Uh, Now, in the first session, I have talked about how to prepare compost for growing button mushroom. Now, I will be discussing with you all about how to produce mushroom from the ready-made compost. Either you have prepared it by low method or by short method. Anyway, uh, I am telling you about both the things, the how the small growers and even some big growers are growing mushroom seasonally by following low cost technology. That is in hedge houses and in already made their in redundant rooms or redundant poly houses or redundant poultry farms. Similarly, the AC unit, air environment control units producing mushroom round the year, both I'm going to share with you all. I hope it will help you. And I'm directly coming to my PPTs. Sir, please unmute yourself. Yes. Sir, at the bottom right, there is present now. Choose entire screen. Click on the center and press. Yes, yes, started, started. Yes. Sir, minimize the Google Meet window and go to the PPT. You're getting? No, no. Can you move to the next slide because we are getting a white screen only. Just a minute, just a minute. Sure, no problem. Ajal. Can you stop the slideshow and yeah, yeah.
and then open the PPT first. You are getting now? No, no, no. Did you choose entire screen or window? Just a minute. I suggest you choose entire screen option. Yes, yes, Is it visible now? yes, yes, yes. Yeah, perfect. Please Okay. start. Thank you. Thank you. Friends, I will be talking about the commercial viability of producing butter mushroom and how it functions. First, I'm coming at how to produce by following low cost technology, become a successful grower. As you all of knew that this butter mushroom is known by scientific name Agaricus bisporus, and it requires temperature and humidity for its full growth. The temperature requirement at initial stage when we put the spawn, जब हम बीज spawn को कंपोस्ट में डालते हैं और incubate करते हैं, रखते हैं उसको, तो it requires 20 to 25 degree centigrade temperature. And after complete spawn run, जब हमें fruiting चाहिए होता है, after even case run, जब मशरूम का माइसीलियम केसिंग के ऊपर आ जाता है फ्रूटिंग के इनिशिएट करने के लिए, we require 14 to 18 degree centigrade temperature. Along with this, humidity is also important. Humidity में ये है कि जो relative humidity है, जो हवा में नमी है, that should be initially that should be around 80 to 90%. And during spawning, after spawning and incubation, उसमें 80 से 90% नमी रहनी चाहिए. और during cropping, ventilation is also important. Ventilation चाहिए, हवा का आवागमन चाहिए. साइमल्टेनियसली उसमें ह्यूमिडिटी भी उससे कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो उसमें एवोपरेशन होगा बेड के ऊपर, बैक में ऊपर होगा एवोपरेशन, या सिंपल बेड के ऊपर होगा, तो देन मशरूम विल स्टार्ट कमिंग, एंड दैट एट दैट टाइम अराउंड 70% ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड. तो ये तीन जो क्रिटिकल पैरामीटर हैं, यानी कि वेंटिलेशन, दिस टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना मशरूम के प्रोडक्शन में दैट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल. सो इन्वायरमेंट इज वेरी क्रूशियल टू गेट गुड मशरूम यील्ड. और उसमें ये कि लो कॉस्ट जब टेक्नोलॉजी हम फॉलो करते हैं, यानी कि टेम्परेचर्स जब डाउन रहते हैं विंटर्स में, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया, उस समय जब बिलो एवरेज टेम्परेचर चले जाते हैं, बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है, तो मशरूम फिर बंद हो जाती है आनी. ऐसे ही अबाउट 22-23 चला जाता है तो मशरूम आनी बंद हो जाती है. तो उस समय यू हैव टू मॉडिफाई द क्लाइमेट. सिमिलरली आपको उसकी ह्यूमिडिटी की वैल्यू मेंटेन करने के लिए जो वाटर का स्प्रे है इस टाइप का इंक्रीज करना पड़ता है. जो वॉल्स हैं या स्टैक के जो आपका थैच हाउस है उसके वॉल्स हैं उनको गीला करना पड़ता है, या जो जूट बैग्स हैं वो लगाने पड़ते हैं. इस टाइप की मॉडिफिकेशन करेंगे तो वी कैन गेट द गुड यील्ड. और सिमिलरली जो वेंटिलेशन है उसके लिए भी यू हैव टू सम आइदर यू पुट सम जो हवा को इनलेट करने के लिए एग्जॉस्ट फैन चलाना है, और हवा को अंदर डलवाना है, बाहर निकालना है अंदर की हवा का, तो ये भी बहुत क्रिटिकल है. और इसी तरह जब इसकी जो हम फार्मिंग करते हैं नेचुरल कंडीशंस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एयर फ्लो रहता है उसका भी हमें ध्यान करना पड़ता है कि किधर रहता है. जैसे जो है ईस्ट वेस्ट का फ्लो विंटर्स में रहता है, तो इस तरह से हम जो रूम्स बनाए, या यानी कि जो थैच हाउसेस बनाए कि वेंटिलेशन नेचुरली भी ठीक हो जाए. और सिमिलरली जो थैच हाउस बनाना है उसका भी नेचुरल वेंटिलेशन हो जाए, उसका भी हमें ध्यान रखना है. तो ये सब क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, इससे हम कर सकते हैं.
ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब इसमें भी मैन्योरिंग जरूरी चाहिए, यानी कि उसको आप अप्स डाउन करना, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, वेंटिलेशन को मॉडिफाई करना। यू हैव टू प्ले विद इट टू गेट द गुड मशरूम एंड कंटिन्यूस गुड मशरूम। जब जहाँ एयर कंडीशन यूनिट है, इन्वायरमेंट कंट्रोल यूनिट है, वहां भी थोड़ा बहुत प्ले करना पड़ता है। यू हैव टू इंक्रीज द एयर, यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, और यू हैव टू मिनिमाइज समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ VFDs की रिक्वायरमेंट रहती है, जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव से कंट्रोल हो जाता है। तो वो भी इस प्रकार करेंगे तो वी कैन गेट ऑप्टिमम yield। हमने एसी चला दिया, ठंडा टेम्परेचर आ गया, मशरूम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो वी हैव टू play with it to maintain a optimum climatic conditions. See, when a grower is growing mushroom for the last so many years, or he's year after year he's producing mushroom, then he must specialize the stacking material। जैसे सेल्फ जिस पे बनाना है, बेम्बूज का बना रहा है, तो इन बेम्बूज को स्टरलाइज कर रहा है। अगर नए भी लिए हैं तो इवन दैट, अगर उसकी लाइफ आपको अच्छी चाहिए तो आइदर यू डू द प्राइमर ऑन इट सो दैट यू कैन गेट। और सिमिलरली जो टर्माइट्स वगैरह ना लगे, दीमक ना लगे, तो उसका भी ट्रीटमेंट आप अगर बेम्बूज का करते हैं तो यू आर इनहांसिंग द योर, जो जिसकी बार बार रिकरिंग पोस्ट ना आए, ना लगे, उसको आपको संभालना पड़ेगा। इस तरह का करिए कोशिश। ये देखिए, दिस इज द बोरर, जो है ना, एक इन्होंने अपनी इनोवेशन की है। आवाज इनोवेशन करी है किस तरह का ड्रिलिंग। वैसे बोरर आते हैं आजकल, ट्रैक्टर माउंटेड बोरो भी बोरर आते हैं, पेड़ लगाने वाले भी होते हैं, उस तरह से भी खींच सकते हैं। अदरवाइज ये इस प्रकार का ये टूल इन्होंने बनाया था टू इनोवेट, ये जो बेम्बूज हैं उनको सॉइल में लगाने के लिए। तो इस तरह जो है ये बेम्बूज जो है ना लगाए हैं। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट how to this erect this thatch houses, but another lecture is there, डॉक्टर मंजीत सिंह का साथ होगा तो नहीं नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह है, आप थैच हाउस बनाने के लिए रोज बना रहे हैं। देन सिमिलरली जो आपको रैक में जो सेल्फ बनानी है उसके लिए, तो इसमें क्रिटिकल क्या है, इसमें क्रिटिकल ये है कि जो गैप है वन सेल्फ टू अनदर सेल्फ इस मस्ट बी अराउंड 1.5 to 2 फीट। तो अच्छी वेंटिलेशन भी रहेगा एंड प्रॉपर फंक्शनिंग इजिली कर पाएंगे। और जो रो टू रो में जो गैप है, यानी कि जो आपके वन रैक टू अनदर रैक का जो गैप है, जो अंदर का रास्ता बनेगा, दैट शुड बी अराउंड 2.5 to 3 फीट। तो इजी मूवमेंट रहेगा। ये क्रिटिकल दोनों में है, यानी कि वेंटिलेशन जो माइक्रो क्लाइमेट बनेगा उसमें भी रहेगा और आपके इजी मूवमेंट पे रहेगा। सी, दिस इज हाउ ये जो आपका स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं, और इनके ऊपर जो कंपोस्ट डलेगा इनको कवर करेंगे लाइक दिस। इस टाइप के भी स्ट्रक्चर्स जो है ना फार्मर्स करते हैं। देखिए आप, ये कितना बढ़िया एक रैक बनाए हैं। एक ग्राउंड की सेल्फ यूज होगी, एक ये सेल्फ यूज होगी, ये करिए, यानी कि 4 सेल्स बन गया। इसके ऊपर केवल 3 सेल्स बनाई है, ग्राउंड प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 4 जो है ना जगह आप बैग्स या मशरूम के लिए जो कंपोस्ट आप बनाया है उसको डाल सकते हैं। और इसको कंपोस्ट नीचे ना निकले तो वी हैव टू पुट सम नेट और पॉलीथीन, ताकि इसके ऊपर जो है ना टाइट से पॉलीथीन बांध देंगे, और उसके ऊपर कंपोस्ट सीधा लगाना है तो उससे कर लेंगे, या बैग्स नीचे ना जाए तो इसमें रस्सियां वगैरह लगाएंगे। इस टाइप का ये स्ट्रक्चर जो है ज्यादातर क्लस्टर्स, बाराबंकी एरिया है, ये जो सोनीपत बेल्ट है, पानीपत बेल्ट है, इधर कपूरथला बेल्ट है, पंजाब में जाते हैं। इधर अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो कोटपुतली एरिया है, वहाँ भी जयपुर एरिया, वहाँ भी कल्टीवेटर है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स वो बेम्बूज के बनाते हैं और उनका यूज करते हैं। अब क्योंकि मशरूम को डजन रिक्वायर, बटन मशरूम पर्टिकुलरली डजन रिक्वायर दिस लाइट, और नोर फोटोसिंथेसिस का तो मामला है ही नहीं मशरूम्स में किसी में भी, इसलिए, और अंदर धूप ना जाए और सिमिलरली वो आपकी बारिश ना जाए, तो इसलिए इसको कवर करते हैं। तो ये देखिए सब कवर्ड स्ट्रक्चर्स आप दिख रहे हैं। और इसमें बड़ा गुड यूज जो है पेडिस्ट्रा का किया है। पेडिस्ट्रा के ही कंपोस्ट बनाए, कम पेडिस्ट्रा के ही जो है ना उसके जो पुली है उनसे साथ में इसके टाटे बनाए, ऊपर से भी कवर किया। तो लाइक दिस प्रिवेंटिंग लाइट एंड एरे दोनों चीज से काम कर लेते हैं। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स है ये लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको आप हर साल जो है ना उस फील्ड पे लगा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, एक ब्यूटी और है
इसी सेम क्रॉप का मल्टीपल यूज भी है सेम लैंड का, कि यहाँ आपने केवल विंटर्स में आपने मशरूम लगाया, देन यू वाइंड अप ऑल दीस थिंग्स एंड ग्रो अनदर क्रॉप एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी पैडी का सीजन आता है या और फॉरेज करोगे व्हाट एवर यू कैन ग्रो। तो मल्टीपल यूज ऑफ द सेम लैंड कैन बी डन। एंड जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है और सबका ये एक टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम डबल करना है, तो मशरूम तो ऐसा व्यवसाय है जिसमें न कि डबल, 3 गुनी से 4 गुनी तक हमारे ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे फार्मर्स है जो कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मशरूम जैसे इंटरप्राइज में, हॉर्टिकल्चर पर्टिकुलर इंटरप्राइज में पाएंगे तो ओनली वी कैन अचीव द टारगेट, वी कैन फिल द स्टोमक्स एंड एज वेल एज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। तो ऐसे में सारी चीजें मशरूम एक समाधान के रूप में आगे आ रहा है। तो ये जो है आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर पूरा खड़ा है, ऊपर से ये है, इसको कवर किया है। और ये सब पैसेज हैं, ये देखिए एक पोल्ट्री शेड का इस्तेमाल किया हुआ है, किस तरह उसमें ये रैक्स बना के स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये साइड में देख रहे हैं, ये जहाँ बाजरा की बेल्ट है, बेसिकली राजस्थान के एक ग्रोथ का है, तो उसने साथ में जो है वहाँ पैडी नहीं होती, तो उन्होंने बाजरा की जो कड़बी है उसका बाजरा की हार्वेस्ट करके उसको यूज कर रखा है साइड में और सब जगह। तो इस तरह की जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये पेडिस्टा का यूज है। और फिर देखिए अंदर जो है सेल्फ के ऊपर कंपोस्ट नीचे ना जाए, तो इस प्रकार के पॉलीथीन बिछा रखे और पॉलीथीन बिछा के और इसके अंदर कंपोस्ट फिल कर देते हैं। इस अगर आप पॉलीथीन नहीं बिछाना चाहते और सीधा बैग्स रखना चाहते हैं तो बैग्स में कंपोस्ट बिछा करके रख सकते हैं, वो भी आपके आगे इस तरह के जो है ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कोस्ट इफेक्टिव जितना बनाएंगे उतना कोस्ट सेविंग, जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसका आप यूज करेंगे, जैसे ढैंचा वगैरह आप इस्तेमाल कर रखा है, ये आपने यानी कि हर साल जो है रोप्स ना लगानी पड़े, तो ये परमानेंट बना लिया उन्होंने और इसको फोल्ड कर लेते हैं, रोल करके रख देते हैं एज एंड व्हेन चाहिए। तो इस तरह का जो है रहता है। तो जस्ट प्लीज थोड़ा सा मैं तो कोस्ट इफेक्टिव होंगे तो उतना ही सेविंग रहेगा। नेचुरली जो लोकली अवेलेबल सबस्ट्रेट है उनका यूज करते हैं तो और अच्छा रहेगा, यानी कि कोस्ट सेविंग आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने से भी होती है, मुनाफा वहां से भी होता है। तो ये ध्यान रखिए, जितना आप पैसा जहाँ सेव कर सकते हैं वहां करना चाहिए। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रिवेलेंट इन द ग्रोअर्स जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह जो है लार्ज स्केल के ऊपर जो है ना, अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई और भी है कि अगर थोड़ा विंटर ज्यादा हो गया है या गर्मी जल्दी स्टार्ट हो गया, तो इस प्रकार के कूलर और अंदर जो है एग्जॉस्ट सिस्टम का आगे स्टैक आता है, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस तरह के अच्छे जो है ना, अब एक ब्यूटी इसमें है कि ये जो आप देखिए मोटा तिरपाल ऊपर से डाला है, इसका एडवांटेज ये है कि आप इसको जब गर्मी ज्यादा हो जाए या जो है सर्दी ज्यादा हो, तो आप इसको ऊपर से डाल सकते हैं, गर्मी ज्यादा हो तो इसको रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार की भी मॉडिफिकेशन जो है अपने लेवल पे आप कर सकते हैं। देखिए और कोस्ट इफेक्टिव होने के लिए उन्होंने दे हैव यूज्ड द मड टू स्टॉप द एयर एंटरिंग द दिस। इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। और ये बहुत सुंदर ही सुंदर जो है ना, जितना आप क्लीनलीनेस रखेंगे उतनी ही मशरूम भी अच्छी आएंगी और वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। जो बीमारियां हैं मशरूम में जो क्रॉप में आती हैं वो भी नहीं आएंगी। तो क्लीनलीनेस और प्रॉपर वेंटिलेशन इज वेरी मस्ट। इस तरह का चीज आप देखिए कि किस तरह क्या लग जाता है एक झोपड़ी बनाने के अंदर। लगभग जो 60 फीट की लंबी जो एक झोपड़ी बनाते हैं और 30 फीट चौड़ा बनाते हैं, लगभग जो ऊंचाई जो है 10 फीट रखते हैं, तो उसमें इस इतने इनकी रिक्वायरमेंट जो है इतने बांस वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती है। तो एक जस्ट फॉर सेक ऑफ की नॉलेज के लिए बताने के लिए। ये देखिए अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो है स्ट्रक्चर है कि आप राउंड द ईयर एक जैसे हमारे साथ ग्रो जुड़े हुए हैं जो डिफरेंट टाइम से अलग अलग मशरूम एज पर क्लाइमेट मशरूम ग्रो करते हैं, उनके लिए जो परमानेंट कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर ये सजेस्ट है इस प्रकार का कि जो वॉल्स हैं वो वॉल्स आपने ब्रिक की बनानी है। ये ब्रिक कैन बी ऑफ कच्चा आल्सो,
कच्ची बना दी और ऊपर ही एक इस प्रकार का फैन का प्रोविजन कर दिया और अंदर एक पॉलीथीन की डक्ट लगाई है ताकि बाहर से एयर दे के अंदर डाल दें, अच्छा एक्सचेंज हो जाए। और सिमिलरली जो ऊपर है ये सरकंडा, जो जैसे पेडिस्ट्रा है उसकी लाइफ कम होती है पेडिस्ट्रा की, 6 महीने से ज्यादा उसकी जो है ना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती, इसलिए जो सरकंडाज होते हैं उसकी लाइफ काफी लंबी रहती है। और ये सरकंडाज की अगर अगर रूफ सीलिंग कर दें तो बेटर रहता है, वो गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। और इस प्रकार अंदर जो है ये स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट है कि किस तरह आप ये बैम्बूज की शेल्फ बना रखी हैं 1 2 3 4, तो इस प्रकार की इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये डोर लगा हुआ है, तो ये इस प्रकार का भी आप राउंड द ईयर कल्टीवेट करने के लिए एज पर प्रिवेलिंग क्लाइमेट, यानी कि सर्दियों में बटर मशरूम लगाया है, फिर आपने ऑयस्टर लगाया है, फिर आपने मिल्की मशरूम लगाया है और फिर जो है दोबारा से बटन मशरूम का सीजन आया था, इस प्रकार से जो है परमानेंट की काम करेंगे और इफेक्टिव पोस्ट इफेक्टिव भी रहेंगे। इस प्रकार जो हमने पहले सेशन में कंपोस्ट बनाया था, उस कंपोस्ट में स्पानिंग की बात आती थी, इसकी स्पान जैसे आपने सीखा, उस स्पान है उसको स्पान को कंपोस्ट में डालना मिलाना, दैट इज नोन एज स्पॉनिंग। तो ये स्पान कितना डालना है, ये अगर आप जाते हैं कंपोस्ट के पीछे, अगर आपका पास 1 क्विंटल कंपोस्ट है तो टेंटेटिवली जो है आप 1 किलो डालें तो बेटर रहेगा। और जनरली वैसे हम 1% 0.7 to 8% तक की recommendation है। और जनरली फार्मर्स जो है 1% के हिसाब से जितना कंपोस्ट है, जितने क्विंटल है उतना किलो बीज, जैसे 1 क्विंटल खाद है तो 1 किलो बीज की मात्रा लग जाती है। अगर आप उसके बेसिस पे जाते हैं जो आपका ड्राई स्ट्रा है तो सीधा सीधा जो है आप उस ड्राई स्ट्रा में 1 क्विंटल सूखा भूसा तो 1 किलो बीज के बजाय 1.25 किलो 1.5 किलो तक आप ले सकते हैं। यानी कि अगर 100 क्विंटल है तो 125 kg स्पॉन इज मोर देन सफिशिएंट। इस प्रकार का ये, यानी कि एक 10 किलो का बैग बनाते हैं तो उसमें 100 ग्राम आप बीज डालते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा। इस तरह का जो इसको अब डिफरेंट इसके वेज है। एक तो आप इससे कंपोस्ट आपको बन गया है, कंपोस्ट को ठंडा किया, फैला लिया और जो साफ सी जगह पे लाके उन्होंने डाला और उसके ऊपर जो है स्पान छिड़क दिया है, मिक्स कर, इसको बोलते हैं थोरो, यानी कि स्पान डाला और उसको थोरोली इस तरह मिला के और ये टोकरी में डालेंगे और टोकरी जो है बेड पे खाली कर देंगे। इस वन वे जो है इसमें डालते हैं, कर देते हैं और फिर इसको दबा के सारे के ऊपर देन जो है टॉप स्पॉनिंग भी हल्का सा स्पॉन फिर डाल देते हैं और कवर कर देते हैं उसको, ताकि ये कंपोस्ट सूखे पॉलीथीन से या अखबार से और ह्यूमिडिटी बन जाए और ये अखबार गीला रहे। तो उसमें जो है इसको सिंपल जो है पहला वाटरिंग है बिजाई के बाद कर रहे हैं तो 1 ml फॉर्मेलिन पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि अगर 150 लीटर 100 लीटर पानी लग रहा है तो 100 ml फॉर्मेलिन आप उस पानी में मिला लीजिए, अखबार के ऊपर गैलरीज में और सारे में छिड़क दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपने सारा दिन काम किया था, जो कुछ अगर अनहाइजीन हो भी गया है, दैट विल किल द अनवांटेड फंजाई और जो है ना वर्क एनवायरनमेंट साफ हो जाएगा। और इसको पूरी अखबार को अच्छी तरह गीला जरूर कर दीजिए ताकि ये वेट हो जाए और नमी इसमें बन जाए। इस समय जैसे बताया गया था भिजाई के बाद 80 to 90% ह्यूमिडिटी चाहिए और टेम्परेचर 24 to 25 चाहिए। इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है और ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करिए और दिन में चाहिए एक बार दो भी पानी छिड़कना पड़िए और टेम्परेचर बराबर रखिए। टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो कूलर का प्रयोजन करिए, कम जाता है तो हीटिंग करिए, ताकि टेम्परेचर बराबर अगर 24-25 डिग्री कंटिन्यू टेम्परेचर मिल जाए, 80-90% ह्यूमिडिटी मिल जाएगा तो इट विल टेक अराउंड 10-12 days to get complete colonization by the spawn। पूरे 10-12 दिन में जो है पूरा स्पान जो है फैल जाएगा इस तरह जो है। और ये विल स्टार्टिंग है और ये इसमें जो है टॉप में आप देख रहे हैं कि कंप्लीट स्पान रन हो गया है, यानी कि पूरे कंपोस्ट को स्पान ने कोलोनाइज कर दिया है। तो ये 10-12 दिन के बाद की ग्रोथ है। उसके बाद ये जो अगर कोई पैच आता है अखबार हटाइए और केसिंग करिए इसको 1 से 1.5 इंच की केसिंग सोयल। और केसिंग सोयल जो है उसको भी आप साइमल्टेनियसली अपने प्रिपरेशन करनी है, जैसे मैं बात पहले भी कर रहा था कि केसिंग सोयल है दैट शुड बी लाइट और उसकी भी पीएच जो है 7 से 8 में हो बेटर रहेगा। लाइट सोयल
और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया हो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब कोकोपीट यूज करते हैं। कोकोपीट के साथ जो है फार्म यार्ड मैन्योर, जो आपका पुराना गोबर का खाद है या सब मिक्स पड़ा है उसमें, तो इसमें 1/4 भाग वो भी मिलाते हैं कोकोपीट के साथ। ये इसका भी प्रेवलेंस है। जहाँ पे कोकोपीट नहीं ऐड करना चाहते या खर्चा नहीं करना चाहते, अवेलेबिलिटी इजी नहीं है, महंगी लगती है, तो सिंपल फार्म यार्ड मैन्योर या जो आपकी दोमट मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी जिसमें अच्छी फसल हो रही हो, दोमट मिट्टी हो, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। खाद मिला दीजिए 1:1 की रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन वॉल्यूम वाइज के ऊपर। या अगर आपके यहाँ प्रेस मड अवेलेबल हो, शुगर मिल हो, तो उसकी प्रेस मड अवेलेबल होती है, तो जो है लाइट जो है ना बन जाती है, उसके अंदर दिन के होते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं टू गिव इट ए मोर पोरोसिटी। यानी कि सोयल है, खाद है, आपका फार्म मैन्योर है, उसका प्रेस मड मिल। सिमिलरली जिधर सेलर्स हैं, जहाँ पे धान की खेती होती है उधर सेलर लगे होते हैं, तो जो सेलर के जो राइस बर्न हस्क होता है, जो हस्क को जो बर्न करते हैं सेलर वाले, बड़ी लाइट उसकी जो राख होती है, लाइट तिनकेदार होती है, उसको भी मिक्स कर सकते हैं फार्म मैन्योर के साथ और सोयल के साथ, सब इक्वल प्रोपोर्शन में, वॉल्यूम बेसिस के ऊपर। इसी प्रकार का आप जो है ना, इस प्रकार केसिंग सोयल जो है आप बना सकते हैं। देखिए फार्म यार्ड मैन्योर है, ओल्ड है, इसकी जो है अगर अवेलेबल भी ना हो तो पहले से 6 महीने पहले, साल भर पहले लेके आप जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो डाल लीजिए, गोबरी खाद डाल लीजिए, और उसको टर्निंग्स और गीला कर करके बार बार टर्निंग देंगे, तो इस प्रकार रेडी हो जाएगी। और उसके अंदर आप कोकोपीट या राइस बर्न हस्क मिला के जैसे कोकोपीट है, ये जो है आपकी राखी है, जो राइस बर्न हस्क है, और दिस इज द ब्रिक्स है। इन तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में इसको वेट कर लेते हैं, तो बिल्कुल बुरादा हो जाता है। और ये इसको तीनों को मिक्स करके इस तरह हम केसिंग सोयल को बना लेते हैं। हाँ, इसको छान भी लेते हैं, जो मोटी होती है वो चीजें या और कुछ इनर्ट मटेरियल होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार के पॉलीथीन वगैरह हो, कांच के टुकड़े वगैरह आ जाते हैं खाद में, सबको निकाल, और उससे पहले इसको स्टरलाइज भी करते हैं, क्योंकि ये इसमें आपने सोयल भी मिलाई है, इसके अंदर आपने फार्म यार्ड मैन्योर भी मिलाया है, और सब उसको इसलिए करने से पहले इसको आप इसको स्टरलाइज करें। स्टरलाइज करने के तरीके को आपका केमिकल वे है, दूसरा आपका स्टीम है। इसको केमिकल से, यानी फॉर्मल्डिहाइड इज बेस्ट फंगिसाइड इंग्रेडिएंट है जो इसको स्टरलाइज कर देता है। तो अराउंड 40% जो आपकी फॉर्मल्डिहाइड आती है उसका सॉल्यूशन आप 5% सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दैट विल वर्क अराउंड, यानी कि 100 लीटर पानी हो, 5 लीटर आपको फॉर्मलिन डालेंगे, ये इस प्रकार का बन जाएगा। और उसको जितनी भी मिट्टी है पर 100 लीटर फॉर्मलिन डालिए और उसको अच्छी तरह गीला करके उसको ढक दीजिए। उससे क्या फ्यूमिगेंट जो है अंदर ट्रैप हो जाएंगे, और जो है उसके अंदर सर्कुलेट करेंगे, और सब जो अनवांटेड एंजाई है उनको खत्म कर देंगे। और पीएच भी सेट करती होती है इसकी, तो इसलिए पीएच सेट करने के लिए जिप्सम और चाक पाउडर दोनों हिसाब से, यानी कि लगभग 1% के आसपास जिप्सम डाल देते हैं, और आधा 1% जो है चाक पाउडर की भी आवश्यकता पड़ जाती है। बट दिस ऑल डिपेंड अपॉन द पीएच की क्या है, उसके हिसाब से इसके सेट करिए, तो एक अच्छा मिक्सर बना के स्टरलाइज करिए। देन जो है स्पान रन जहाँ कंप्लीट हो गया है उसके बाद इस तरह डाल देते हैं। और ये देखिए इसे इसकी जो थिकनेस है वो 1.5 इंच से ज्यादा ना हो। पहले 1 इंच के करीब कर लीजिए, फिर इसको जब स्पान रन कंप्लीट सा हो जाता है, ऊपर केसिंग के ऊपर फंगस दिखे तो हल्का हल्का कवर कर देते हैं। मैक्सिमम इज नॉट गो बियॉन्ड 1.5। ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है कि जो केसिंग सोयल है इट विल होल्ड द वाटर एज वेल इट विल डू द एरेशन इन बिटवीन द कंपोस्ट एंड अपर क्लाइमेट। तो क्या होगा, ये एरेशन मस्ट है, और इसलिए ये सॉइल जो है पोरस अच्छी होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये गीली रहे, कंपोस्ट सूखे नहीं। तो क्या होगा, मशरूम का माइसीलियम जो है इसमें से दैट विल आल्सो एक्ट एज हिंड्रेंस, एक रुकावट का काम करेगा। अदरवाइज ये फंगस जो है ना नीचे कंपोस्ट में फैलती रहेगी, ऊपर नहीं आएगा। एरेशन जब इसके टच में एजुकेशन कर देते हैं तो मशरूम का माइसीलियम ऊपर जब ग्रो करता है, तो जो एयर के टच में आके एरेशन होती है, तो ये फूटिंग पे तब्दील हो जाता है। इस समय तक जो है, जब केस रन तक जो है कंप्लीट ये केसिंग हो गया, जब हम ऊपर देखने लग गए माइसीलियम, उसमें टेम्परेचर लो डाउन करते हैं अराउंड 14 to 18 सेंटीग्रेड, नमी भी घटाते हैं अराउंड
70% एरेशन बढ़ाते हैं, तो ये मशरूम फिल्म छोटी स्टार्ट होती है। इस तरह छोटी छोटी दिखती है, दैट विल स्टार्ट ग्रोइंग, एंड ये फुली ग्रोन जो हो जाए तो इसको ट्विस्ट करके जो है इन मशरूम को निकाल देते हैं। ये एक लो कॉस्ट स्ट्रक्चर में इस तरह की मशरूम है, और अच्छी रोबस्ट मशरूम आती है। इसमें वेंटिलेशन बेसिकली होता है, ये सारा इधर उधर से हवा निकल जाती है, ज्यादा टाइट होता नहीं है, या इस प्रकार के छोड़ देते हैं हवा का आवागमन के लिए, सर्दी होती है बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो है ये जो है स्ट्रक्चर्स इस तरह ट्विस्ट करके, देखिए ये अंगूठा और उंगली ट्विस्ट करके मशरूम की हार्वेस्टिंग करते हैं, ताकि नीचे का फंगस ऊपर ना आए। और फिर हल्का सा मशरूम को काट के पैनेट्स में पैक कर देते हैं, और अनवॉश मशरूम बेचते हैं, तो ज्यादा अच्छा दिन तक चल जाती है, अच्छा दाम भी मिलता है। वॉश करना है तो इसकी हल्की रूट कटिंग करते हैं, रूट कटिंग करके सिंपल वाटर में इसको वॉशिंग कर लेते हैं इस तरह, और ताकि ये व्हाइटनेस रहे इसकी, क्योंकि इसमें फिनोलिस एंजाइम काफी ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जैसे एप्पल में ब्राउनिंग होती है, ऐसी इसकी टिप्स ब्राउन करनिश हो जाती है, टॉपिंग भी ब्राउन करनिश हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ी रहे, केमिकल जो आपकी एंजाइम्स उनकी एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज कर लेते हैं, कैल्शियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज कर लेते हैं, जिस पानी में से फाइनल वॉशिंग करते हैं उसमें ये डाल लेते हैं, लगभग 10-12 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल देते हैं, उसे पास कर देते हैं, तो एक सी बहुत थिन लेयर इसके ऊपर से मशरूम के ऊपर आ जाती है, ताकि वो ब्राउनिंग को रोक देती है, डिले कर देती है। फिर इसको क्योंकि हम लोग कलर के बहुत ऑब्सेसिव है, हमें व्हाइट बटर मशरूम देखिए तो व्हाइट चाहिए, यदि ब्राउन हो जाए तो विल नॉट प्रेफर। वो न्यूट्रिटिव वाइज नो इश्यू, बिल्कुल इक्विवेलेंट गुड है, ब्राउन हो गई खराब नहीं है। आजकल तो ब्राउन मशरूम जो कंफर्टेबल है बोलते हैं, बड़ी 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 पसंद भी की जाती है, ज्यादा दामों में बिकती है। ब्राउन मशरूम का एडवांटेज ये है, कलरफुल मशरूम्स का अंदर है, इनमें जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन जिसमें है दैट है मोर कार्बन विटामिन डी कंटेंट, तो वो ज्यादा अच्छी रहती है। हम लोग थोड़ा कलर ऑब्सेसिव व्हाइट ही मांगते हैं, बट कलरफुल मशरूम खाएंगे यू विल गेट मोर विटामिन डी। इस प्रकार जो है वाटर उसमें से निकल जाए, जब सरफेस वाटर ड्राई हो जाए तो इनकी पैकिंग कर लेते हैं इस प्रकार की। ये देखिए आप, ये जो है इनके अंदर पीपी की फुल ग्रेड की होती है, इनमें कुछ राउंड आते कुछ छेद कर देते हैं कंडेंसेशन ना हो, और सील करके इसको मार्केट में ले जाते हैं। अदरवाइज जो है पैनेट पैकिंग के आगे बताने जा रहा हूँ, ये था। तो आई होप आपको जो है जो लो कॉस्ट है उसकी बारे में बात समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन? हेलो सर। अभी जो मैंने आपको हेलो। बताया है इसमें, ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, इसी बारे में क्वेश्चन बाद में ले लेते हैं, मैं कंप्लीट कर हाँ। लेता हूँ। राइट, अब यू राइट कीप अपना नोट कर लीजिए क्वेश्चन। राइट, अभी जो आपका राउंड द ईयर कल्टीवेट करते हैं, जो ग्रोथ कंडीशंस है वो सब सेम सिमिलर होती है। कंपोस्ट जैसे हमने प्रोड्यूस किया, दैट कैन बी यूटिलाइज इन बोथ वे। अगर आपने सर्दियों में लगानी तो भी कंपोस्ट वैसा ही चाहिए, गर्मी में लगाना तो भी वैसा ही चाहिए, झोपड़ी में लगाने तो भी वही, और अगर एसी फार्म है तो वही। यानी कि कोई चेंजेस नहीं है, जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है वही है, बट यही है कि जो एनवायरमेंट कंट्रोल यूनिट है, यानी एसी फार्म कमर्शियल फार्म है, वहाँ सारे साल ग्रोइंग करते हैं, तो वैसा हमें टेम्परेचर एंड ये ह्यूमिडिटी सब प्रोवाइड करना पड़ता है। नेचर का उसमें कोई नहीं है। इसी तरह वेंटिलेशन भी हम इसमें अच्छी खासी देनी पड़ती है, क्योंकि क्लोज होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, हवा का आवागमन ऐसे फ्लो नहीं करता जैसे हमने अब झोपड़ी में देखा। उसमें तो यानी कि हवा का फ्लो अपने आप जो है ना रुका हुआ उसमें फ्लो कर जाता है, इसलिए वहाँ मशरूम भी कई बार रोबस्ट आती है, अच्छी आती है। मैं कई बार देखता हूँ मार्केट में, कभी जो ग्रोवर लाते हैं, जो कमर्शियल जो लोकल ग्रोवर है, उसकी मशरूम ज्यादा पसंद की जाती है एज कम्पेयर टू एसी फार्म। ये केवल यही है कि जो उसको क्लाइमेट मिला, वो थोड़ा सा अच्छी वेंटिलेशन मिल गई। अगर कमरा है उसमें अगर सही से मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो मशरूम अच्छी नहीं आ पाएगी। देखिए, ये एक छोटे कमर्शियल यूनिट है जिसमें 8 ग्रोइंग चैम्बर्स आ गया। इसके अंदर जो है ना, अंदर 8 ग्रोइंग पफ पैनल्स के बने हुए एक गैलरी है सामने, और इसके अंदर रूम्स बने नीचे लंबे लंबे 60
लेंथ के 20 फीट चौड़ाई के हैं। और ये है आपका कंपोस्टिंग एरिया यानी कंपोस्टिंग यार्ड, जहाँ पे आप कंपोस्ट बनाते हैं। ये बंकर है, बंकर 1, बंकर 2, बंकर 3, यानी कि यहाँ सब कुछ मिक्स करके डालते हैं। और फर्स्ट थर्ड डे इसमें से निकाल के इधर डाल देते हैं, और आफ्टर थर्ड डे डाल देते हैं, और नेक्स्ट थर्ड डे बाद ये पाश्चराइजेशन चैम्बर में डाल देते हैं। ये कम्प्लीटली बंद है, ये ऊपर स्टॉक से ओपन है, जैसे मैंने आपको बताया था। और जब रेडी हो जाता है तो इसे कंपोस्ट निकाल के अंदर बिजाई करके बैग ले जाते हैं। इस प्रकार के यूनिट्स जो है ये अंदर यही का ही है, इसके डोर्स है ऐसे। और ये सब इसके अंदर क्या क्लाइमेट है, कैसे कंपोज है वो यहाँ लगे हुए हैं। क्लाइमेट का अंदर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब डिस्प्ले हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो फ्रेश एयर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाए निकालने के लिए प्रोविजन दिया होता है। तो ये कम्प्लीटली क्लोज है। और उससे पहले आपने जो थैच हाउसेज देखे वो इतना एयर टाइट नहीं थे, इसलिए उनमें वेंटिलेशन हो जाता था, और इनमें वेंटिलेशन के लिए आपको ये सिस्टम लगाना ही पड़ेगा। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, कैसे एक मशरूम यूनिट आप लगाते हैं, जिसके बाद सब कुछ है। तो वो आप इसमें जो है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि कंपोस्टिंग, अपना कंपोस्ट, ये सारा प्रिवेटिंग एरिया ये कंपोस्ट के लिए बनाया। और जो ये फेज 1 टनल्स है, फेज 2 पाश्चराइजेशन के लिए है। यहाँ पे बिजाई करते हैं और बैग्स इन कंपोस्ट में पहुंचा देते हैं। और यहाँ से मशरूम हार्वेस्ट करके कैनिंग यूनिट कैनिंग में कर देते हैं, फिर सप्लाई कर देते हैं। यहाँ से बिजाई के लिए स्पान स्पान लैब है, यहाँ से बिजाई करके। हाँ, ये कंप्लीट जो है यूनिट का स्कीमेटिक डायग्राम है। इस प्रकार का ये अंदर का जो सेल्फ एरिया है, और जो आप रैक्स लगे हुए हैं कमरे में, देखिए 2 फीट का, यानी कि 24 इंच का एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ के बीच का। नीचे ग्राउंड में इसमें नहीं रखते, नीचे जो है 6 इंच के करीब गैप छोड़ देते हैं ताकि वेंटिलेशन हो। और ये 24 इंच के ऊपर एक ये है, 2, 3, 4, 5, 5 इसके अंदर सेल्फ बनी हुई है, इनके ऊपर आप टैक्स कर सकते हैं। ऐसे दूसरा जो है आप देख रहे हैं 3, लगभग 3 फीट का ये बीच में गैप है, 1 मीटर का। हवा का आवागमन ठीक रहे इधर भी और आने के जाने के लिए काम। ये 2 ही रैक एक कमरे में लगाए हैं। इस तरह का जो है अंदर का। और ये जो ऊपर गोलदार आप देख रहे हैं, ये एयर डक्ट है, यानी कि इसमें हवा का जाने के लिए प्रोविजन दिया होता है। बस करेक्ट है। तो एक पूरे यूनिट का फोटो है, जिसमें ये रैक्स आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम के रैक्स लगे हैं, आएगा और इनके अंदर भर दिया जाएगा, और स्पानिंग किए हुए कंपोस्ट आएगा और अंदर भर देते हैं। अब ये सब क्लोज कर देते हैं। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़िया रहती है। इसमें ये रेल्स बनी हुई है, कंपोस्ट जो है इसी के ऊपर एक साइड से खींच जाता है, अंदर तक भर देते हैं, फिर मैकेनाइजेशन है। तो ये जो है ऊपर आप डक्ट देख रहे हैं, साइड में डक्ट लगा दें, यहाँ भी तीनों जो भी रोज उसमें लगा देते हैं। और ये जो छेद है ये हवा नहीं है, और यहाँ आगे एसी स्टूडेंट है जो एयर को थ्रो करता है। और ये आया बिजाई, तो उसमें तो हम बिजाई कर रहे थे, सेल्फ में भी कर रहे थे और बैग में भी कर सकते थे। ये अगर इनमें हमने नहीं डालना, तो इस तरह का जो बैग्स लेके उसमें 10 किलो का बैग बनाया, 20 किलो का बनाया, वाटर है तोड़ के हिसाब से आप बनाइए, बीज डाल दीजिए। थोड़ो मिक्स कर सकते हैं, पहले बीज डाला, मिक्स कर लिया और भर दिया इसके अंदर। या इसमें लेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ कंपोस्ट डाला, 1 किलो कंपोस्ट डाले, फिर लेयर डाल दी, फिर 1 किलो डाला, 2 किलो डाला, फिर बीज डाल दिया, ऐसे। अब आप कहेंगे कि नीचे का बीज पड़ा ऊपर कैसे आएगा? बेसिकली ये बीज समझाने के लिए कह रहे हैं। ये बेसिकली स्पॉन है एक ग्रेन के ऊपर। ग्रेन किसी का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, राई हो सकता है, सोरगम हो सकता है, आपका व्हीट हो सकता है। उसके ऊपर एक फंगस जो है मशरूम का लिपटा हुआ है। व्हेन वी पुट इनटू द कंपोस्ट, ये जो माइसीलियम इसके ऊपर है, दैट विल शिफ्ट इस मीडिया फ्रॉम द ग्रेन टू उसके ऊपर कंपोस्ट के ऊपर चला जाए, शिफ्ट हो जाएगा, और इसको कोलोनाइज, वो सारे को उसके ऊपर कोलोनाइज कर लेगा। ऊपर नीचे जहाँ भी है उसका काम आपस में जुड़ जाते हैं। जो माइसीलियम है वो आपस में कनेक्टेड होता है, और फिर जो नीचे का कंपोस्ट है, जो ऊपर का है, सब में से मशरूम। ये देखिए इस तरह के जो है ये स्पॉन्ड बैग्स हैं, और जो ग्रोअर्स हैं वो अपना स्पॉन्ड बैग्स ले जाते हैं और अपना ग्रो करते हैं, या सीधा जो है कंपोस्ट इतने भरवा भी ले जाते हैं और वहां अपना बीज ले जाते हैं, जाके सीधा ही सेल्फ में भर देते हैं। तो
इस प्रकार का जो है प्रोजेक्ट जो है अगर आपके नजदीक है या गवर्नमेंट सेक्टर में हो या ग्रोअर के पास हो, तो दे कैन टू हेल्प द ग्रोअर्स आल्सो। अपना कंपोस्ट बेच के बिजनेस भी कर सकते हैं और इस तरह बैग बेच के बिजनेस कर सकते हैं और लोगों को मशरूम ग्रो करवा के मशरूम वापस ले सकते हैं। इस प्रकार का जो है ना प्रारूप बनाया जा सकता है कि बाई बैग भी कर ले और जो कंपोस्ट प्रोड्यूसर है, स्पान प्रोड्यूसर है, मशरूम लेकर आके मार्केटिंग करके कंपोस्ट बना के बीज बना के सब दे दे, तो ग्रोइंग और किसी से करवा सकते हैं। इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। ये सब स्पॉन्ड बैग्स जो है ना अंदर रखे हैं, 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 80-90% ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं इसके अंदर, और अराउंड 10-12 डेज में ये कंप्लीट स्पान रन, जैसे आप देख रहे हैं वाइटिस हो गए हैं। आप ये प्रोसेस में खोल देंगे, अखबार हटा देंगे और ऊपर इसके केसिंग कर देंगे। जो ये केसिंग जो मैंने पहले भी दिखाया, केसिंग ये पाश्चराइज, वो पहले बताया था आपको, केमिकल वे ऑफ स्टरलाइजिंग द केसिंग सोइल। दिस इज अनदर वे ऑफ पाश्चराइजिंग द केसिंग सोइल। ये जो मिक्सर बनाया था तीनों का, उसको फ्रिज में भर लिया है, गिला के अराउंड 50% के आसपास ये नमी होनी चाहिए इसके अंदर सोइल में, और फिर इसको रख देते हैं। नीचे से स्टीम की आने की जगह है और दरवाजा बंद कर देते हैं, इसमें स्टीम छोड़ देते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं फॉर 6 आवर्स। तो फिर ये है कि इसके अंदर जो भी अनवांटेड नेमेटोड है, चाहे आपके जो है स्पोर्स हो, फंगस के, बैक्टीरिया हो, वो सब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे किल हो जाते हैं। फिर इसको ठंडा करके केसिंग को यूज करते हैं। ये कंप्लीट स्पॉन रन बैग्स के ऊपर वो केसिंग कर देते हैं, जबकि साथ है स्लाइस की। और ये पूरे उसका पूरे रूम का जो है तो है, आप देख रहे हैं बैग्स में से मशरूम जो है इस तरह निकलना स्टार्ट हो जाता है और ट्विस्ट करके इसको निकाल लेते हैं और वॉशिंग करते हैं या अनवॉश पैक करके ले जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत मशरूम आती है। टाइम टू टाइम वाटरिंग, इसकी नमी बनी रहे, ऊपर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हाइजीनिक कंडीशन ठीक हो, मशरूम डेफिनेटली आएंगे। अगर इसमें डेविएशन रहेगा, नमी ज्यादा रहेगी, हवा का आवागम नहीं होगा, तो मशरूम के ऊपर दाग धब्बे आने शुरू हो जाएंगे, मशरूम ग्रो नहीं होगी, शेप अच्छी नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनी रहेगी, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसलिए वेंटिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसलिए इस तरह ध्यान रखना है कि आपने बिजाई तो कर दी, उसके बाद मशरूम स्टार्ट हो रही है तो प्रॉपर मेंटेनेंस है ना इन्वायरमेंट की तरफ आपको करना है। बैग्स में आप देख रहे हैं बैग कल्टीवेशन है, तो ये खूब बैग जो है ना भर के मशरूम आती है। अराउंड लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरी क्रॉप इसकी आ जाएगी। टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रखें, वेंटिलेशन ठीक रखें, तो कंप्लीट जो है यू कैन गेट अ गुड यील्ड। आप ये देख रहे हैं, यानी कि कंप्लीट स्पान रन और केसिंग में भी स्पान रन और ऊपर एक मशरूम आ रही है। इस प्रकार का जो है ये एल्यूमिनियम के रैक्स के ऊपर जो है आप देख रहे हैं रेल लगी हुई है इसके ऊपर आगे सरकने के लिए, ताकि मशरूम को ऊपर तक ये है 3, 4, 5 है ना जो सेल्फ लगी हुई है, ऊपर तक पहुंचने के लिए कैसे ये ट्विस्ट करके मशरूम को रखी हैं और इनको जो है हल्की कट करके ऐसे कर लेते हैं और पैनेट्स में डाल देते हैं। ये पैनेट जो है इसका एडवांटेज ये है कि ये एक तो दिखने में तो खूबसूरत रहेगी, मशरूम डालेंगे तो अनवॉश मशरूम पर से फिल्म चढ़ा देते हैं पॉलीथीन की। तो ये जो अनवॉश मशरूम है कंपेयर टू वॉश मशरूम ज्यादा दिन तक ब्राउन व्हाइट रहती है, ब्राउन वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये ज्यादा पैसा भी कैरी करता है और जो सेल्फ लाइफ की इश्यू रहता है वो भी थोड़ा घट जाता है। इस तरह की जो है ये फिल्म में जो ऊपर चढ़ाते हैं, इस तरह जो मशरूम डाल के ऊपर चढ़ा रखी और ये मार्केट में अगले 10 दिन तक की फ्रिज में, अब नॉर्मल 6-7 डिग्री टेम्परेचर में 10-12 दिन कुछ नहीं इसका जिस दिन दाम अच्छे उस दिन मार्केट आप निकाल सकते हैं। ये पैकिंग है। तो ये था मशरूम्स के बारे में। आई होप आपको माइट हैव द मैसेज। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आई एम रेडी टू आंसर यू, प्लीज। आपके क्वेश्चंस वेलकम है। नमस्कार सर। जी सर हमारा सवाल ये था कि जो
रफलिंग किया जाता है, एक रफलिंग जो एक प्रोसेस है, जी जी। तो उससे तो एक फायदा हमको ये होता है कि हमारा फ्रूट बॉडी अलग अलग आता है इसका। हम्म, पर जी। क्या इसका कोई प्रोडक्शन डिले होने का भी कोई कारण हो सकता है क्या, रफलिंग करना? रफलिंग का एडवांटेज जैसे आपने बताया कि यूनिफॉर्म मशरूम की ग्रोथ प्रोडक्शन हो जाती है। बस केवल एक या 2 दिन का अंतर आ जाता है, और बाकी ज्यादा इश्यू नहीं है। अच्छा, दूसरा है क्या सर, जो स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट है, जो कि बटन का हम कम से कम 2 साल पुराना रखते हैं हम अपने पास, तो क्या इज इट बी कुड बी यूज्ड फॉर केसिंग पर्पस? डेफिनेटली एक नेचुरल मीडिया है, आप उसका यूज करेंगे तो कॉस्ट सेविंग भी रहेगी, बट आप उसका पाश्चराइजेशन या स्टरलाइजेशन प्रॉपर जरूर करें, उसमें कोई कोताही ना रखें, क्योंकि दैट मे बी सोर्स ऑफ इनोकुलम, जो इसके अंदर पेस्ट और आ जाते हैं, डिजीज आ जाते हैं, दैट मे एक्ट एज ए सोर्स। इसलिए जो मटेरियल आप गला हुआ 2 साल का पुराना का यूज करते हैं, दैट मस्ट बी प्रॉपरली स्टरलाइज्ड। Properly means that needs casing sterilization in the casing sterilization chamber, or it could be chemically treated and used. या इट कैन बी केमिकली ट्रीटेड। उसमें यही है कि एक तो आप जब पहले मशरूम ग्रो कर रहे थे, तो उस समय जब आप ग्रो कर रहे थे, तो उस समय आपने ध्यान रखना है, जब कंपोस्ट एम्प्टी किया है, तो ऐसा कोई डिजीज तो नहीं था, जैसे वेट बबल वाली प्रॉब्लम रही हो या येलो मोल्ड की प्रॉब्लम रही हो, तो हम उसमें एडवाइस करते हैं कि उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप उसको कम्प्लीटली स्टरलाइज करने का मामला ये है कि जो मैंने कंटेंट बताया, 100 लीटर पानी और 5 लीटर फॉर्मलिन, और फॉर्मलिन शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, वो होना चाहिए। और इसी तरह जो आपका केसिंग सॉइल को प्रिपेयर करने का पूरा कोताही ना हो, उसमें शॉर्टकट्स ना हो, ठीक है आपने स्प्रे कर दिया था केसिंग फॉर्मलिन ना, यू हैव टू ड्रेंच द सॉइल, केसिंग सॉइल विद द वाटर ऑफ विद द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। Sir, sir, I have a question, sir. Do bag size? अच्छा सर, Sir, this is Noor Nawaz, Assistant Professor Agriculture Microbiology, Dharwad. जी 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 सर नौशाद। मेरा एक सवाल था, रूम सैनिटाइज करने के लिए बेस्ट सैनिटाइजर कौन सा है, ताकि वो ह्यूमन बीइंग को और वर्कर्स को भी हार्म ना हो, और ना ही मशरूम्स को भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना रहे, तो उसको कौन सा केमिकल और कौन से कॉन्सेंट्रेशन में बेस्ट रहेगा सर? नुसरत, जो आपका रूम को स्टरलाइज करना है, एम्प्टी रूम को करना है, तो आप फॉर्मल्डिहाइड रख के 2-3 जगह जो है आप रूम में, और उसमें पोटाशियम परमानेंट डाल दें और बंद कर दें, तो फ्यूमिगेशन पूरा हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ये डेफिनेटली ये केमिकल है तो नुकसान करता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम भी कर देता है, इसलिए आप जो कमर्शियल फार्म्स में क्या करते हैं कि हम उसमें सजेस्ट करते हैं कुक आउट, यानी कि जितना जब मशरूम को पूरा हो गया है, तो उसमें स्टीम छोड़ देते हैं, स्टीम से उसको गर्म कर देते हैं पूरा, तो उससे क्या है, सब स्टरलाइज हो जाता है, और फिर उसको खाली करते हैं। पर क्योंकि कॉस्टली अफेयर होता है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का जो ड्रेंचिंग मैंने बताया, उसको आप जो लास्ट जो आपकी मशरूम ओवर हो गई है, तो उसका स्प्रे आप हर में वाटरिंग इस तरह करें कि मैक्सिमम जो है फॉर्मल्डिहाइड चले जाए, और बैग्स का मुंह फिर आप बंद करवा दीजिए, और 1-2 दिन बाद बाहर निकाल के डंप करिए, तो वो कम्प्लीटली आपका ड्रेंचिंग से जो भी उसके कोई ऐसा होगा वो किल हो जाएगा। रूम को जो है फिर आप अच्छी तरह, अगर पक्का रूम है तो धुलवाइए उसको, साफ करिए, और जो रैक्स है उनके ऊपर प्राइमर वगैरह करवाइए, दैट विल बी फाइन। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उससे उसका भी यूज करिए वॉशिंग वगैरह में, तो जो है तो रूम जो है कम्प्लीटली स्टरलाइज हो जाएगा। सर, आई एम डॉक्टर एस के देवा फ्रॉम श्रीगंज, राजस्थान। थैंक यू सर, धन्यवाद। वेलकम जी, सर बताइए। सर, हमारे यहाँ कुछ ग्रोवर जो मशरूम ग्रोवर हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में वो जो मशरूम है उसको ब्लीचिंग पाउडर से वॉश करते हैं, तो वो कितना हैजार्डस है सर? वो ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल हजार्डस है, उसको नहीं यूज करना, बेसिकली गलत है, वो डर्मिसाइडल है, नहीं यूज करना चाहिए। उसको सिंपल वाटर और ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम परमैंगनेट या सोडियम या पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, वो आधा से 1 ग्राम पर लीटर से ज्यादा भी डोज उसको नहीं यूज करना है।
और अनवॉश मशरूम अगर आप पैक करेंगे तो दैट विल मोर बेटर, उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा रहेगी और वो इवन फ्रिज में भी 10-12 दिन तक रुक जाएगी। अनवॉश मशरूम को ही आप पॉपुलर भी करिए, और लोग भी जो है काफी अवेकन हो रहे हैं कि जो चमकती हुई मशरूम होती है उसको दे यूजुअली वो उसमें संदेह पैदा हो जाता है। ये अनवॉश मशरूम को ही पैनेट्स में पैक करवा के आप उसको पॉपुलराइज करिए, दैट विल फाइल बेटर। ये ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट ओके, प्लीज। थैंक यू सर। सर माय नेम इज प्रकाश, हम छत्तीसगढ़। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम 1000 स्क्वायर फुट में कितना कंपोस्ट डाल सकते हैं पार्डन, सर? आप कितना कंपोस्ट किसमें? जी 1000 स्क्वायर फुट में हम कितना यस यस, वेरी गुड, कंपोस्ट डाल सकते हैं वो सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रकाश। प्रकाश, अगर आप जो एरिया है आपका, वो एरिया कैलकुलेट आपको करना है जो आपका सेल्फ एरिया है, यानी कि एक सेल्फ जो खाना बनाया आपने जिसपे कंपोस्ट रखना है, डालना है, उस कंपोस्ट में उसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। सपोज एक आपका सेल्फ 40 फीट लंबा है और वो 5 फीट चौड़ा है, तो एरिया हो गया 200 स्क्वायर फीट, राइट। 200 जी जी स्क्वायर जी फीट में कंपोस्ट आपने डालना है, अपने सेल्फ में डालना है, तो आप 8 से 10 किलो कंपोस्ट पर स्क्वायर फीट, यानी कि 200 गुना अगर 10 कर देते हैं तो 2000 किलो कंपोस्ट आपका एक बेड पे ही आ गया। 200 इंटू 10 किलो पर स्क्वायर फीट, तो इससे 8 किलो डाला तो आपका 1600 किलो कंपोस्ट आ जाता है। दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट द कंपोस्ट रिक्वायरमेंट। और थैंक यू सर। उसको बैक कैलकुलेशन करिए, उसका आधा कर दीजिए, तो आपको ड्राई स्ट्रा का पता चल जाएगा। यानी कि अगर आपको 2000 किलो कंपोस्ट चाहिए तो उसके पीछे आपको लगभग 800 से 1000 किलो 800 से 800 से 1000 किलो सूखा भूसा चाहिए लॉन्ग मेथड में। थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आई एम आफ्टरनून जी। विजय गुप्ता, झारखंड देवघर से। जी सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम स्पॉन देते हैं कंपोस्ट में जी और स्पॉनिंग करने के बाद केसिंग का जो टाइमिंग है वो 15 दिन है। 15 दिन के अंदर हम उसको जो हम उसमें केसिंग करते हैं, ठीक है ना। और बाय द वे अगर उसमें हमारा 1 महीना और लेट हो गया यानी 45 डेज, तो क्या उसमें फिर हमारा होगा फ्रूटिंग? फ्रूटिंग तो डेफिनेटली होगा। उसका इश्यू क्या है कि आप जितना डिले करते हैं तो जो स्पान रन हो रहा है, तो उसका स्पान जो रन जो फंगस है मशरूम का, जी जी, वो ऊपर नेट बनाना शुरू कर देगा, राइट। नेट बनाना चालू कर सेकेंडली देगा। सेकेंडली जो उसका जो माइसीलियम है, जो मशरूम का फंगस है, जी वो जी उसमें से न्यूट्रिशन तो ले रहा है ना, तो आगे उसकी जी। प्रोडक्शन कम आने की संभावना भी बढ़ जाती है और कंपोस्ट साथ में ड्राई भी होना शुरू हो जाएगा। काटिस मैडम है। थैंक यू। ठीक, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I have actually around 2-3 queries. Sir, एक जो है जो आपने इनफैक्ट फर्स्ट सेशन में भी बोले थे कि there are lots of farmers, वो लोग सिर्फ कंपोस्ट बनाते हैं एंड लाइक दैट कैन बी आल्सो डन इन अ बिजनेस, कंपोस्ट बना के सेल किया जा सकता है। तो सर आई जस्ट वांट टू नो कि कंपोस्ट रेडी हो जाने के बाद लाइक वो कितना देर तक, लाइक कितना अप टू कितना दिन, लाइक सपोज आई एम फ्रॉम असम, ओके सर, हम लोग का आसपास का एरिया में कोई कंपोस्ट नहीं बनाते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे बटन मशरूम कल्टीवेशन नहीं होता इस एरिया में। तो मैं अगर बांग्लादेश में आता हूँ, लाइक सपोज बिहार और बंगाल, तो यहाँ पे लाइक अराउंड 24 नॉट 24 48 आवर्स टू मोर देन 48 आवर्स लग जाएगा। सो दैट कैन बी पॉसिबल और इट्स नॉट पॉसिबल? प्रदीप जी, इज पॉसिबल, नो इश्यू। मैं आपको बताऊं कि कंपोस्ट जो है इवन नीदरलैंड, हॉलैंड वगैरह से, यूरोपियन कंट्री से, इन बांग्लादेश में भी आता है शिपिंग से। और वो लोग क्या करते हैं कि वहीं से जैसे शिप स्टार्ट होता है, जहां से मतलब वहीं पे कंटेनर में ही स्पान भी डाल देते हैं। ओके, स्पानिंग करके ही छोड़ते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके
वो आता रहता है, तो ड्यूरेशन और ड्यूरिंग ट्रेवल ही स्पान रन काफी हो जाता है। ये भी एक तरीका है। सिमिलरली आप अभी आपने बिहार से लेना है, वेस्ट बंगाल से लेना है, आप ट्रक में कंपोस्ट लाइए और आराम से जो है ना 48 या 96 आवर्स भी लगे, कोई इश्यू नहीं है। लाके आप खाली करिए और फिर उसको फैला के उसे बिजाई करिए, तो आपका अच्छा स्पान रन होगा। ओके, मतलब 2-3 days इज सेफ पीरियड। यस, 2-3 days इज सेफ हियर, नो इश्यू। हीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया ना, उतार के आप उतारेंगे, जब ट्रक से उतारेंगे तो उसको उतार के फैला लीजिए और फिर उसको नेक्स्ट डे उसमें बिजाई करिए, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक ठीक सर, और एक चीज आपने फर्स्ट सेशन में बोले थे कि लाइक वी कैन यूज द ओल्ड कंपोस्ट, पुराना अगले वाला सीजन, अगले वाला कल्टीवेशन का कंपोस्ट को नया वाला के साथ मिक्स कर सकते हैं अराउंड 30%। तो लाइक तो सर अगले वाला कंपोस्ट में लाइक सपोज लाइक क्या बोले सर, एवरी टाइम विच जो वाला मैं स्पॉन यूज कर रहा हूँ इज नॉट, इफ सपोज आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग माय ओन स्पॉन, आई एम लाइक प्रोक्योरिंग फ्रॉम समवन एल्स, तो बार बार मशरूम का स्ट्रेन सेम नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। तो मैं जो ओल्ड कंपोस्ट यूज करूंगा उसमें बटन लाइक 22 ही रहेगा, माइट बी सम अदर स्ट्रेन, अदर डेविएशन, एंड नया वाला जो यूज करेंगे उसमें कुछ अलग डेविएशन हो सकता है। तो ड्यू टू दैट कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? प्रदीप जी, मैं जो पहले बता रहा था, पहले सेशन में कंपोस्ट के बारे में बता रहा था, जो अच्छा कंपोस्ट आपका बन गया है, once your good compost become ready, you just save 25-30% of that compost, and in next load of compost, when you are preparing next load of compost, you can mix with that. It means the inoculum which have already in the compost got developed, that will get inoculated in the new compost, and the good compost will become ready after doing pasteurization. Okay, that was meaning that. And now you are asking about the spawn. Yeah, Yes. you can use even spawned compost or the compost in which completely fully colonized compost you have. You can use as a secondary source of inoculum it for the new fresh compost. Okay, you have the you have one load. You have, suppose you have 100 quintals of compost which is completely colonized by the Agaricus bisporus, right? And you have brought new compost or you have prepared new compost. In that you require spawn. If you don't have the spawn, you use 10 to 12%, 10 to 12% of the ready spawned compost, already colonized compost in the fresh compost, to avoid the to purchase new spawn. That you can do. Similar is a fashion. Even you can use some of the spent compost from the compost you have obtained yield. You have taken the mushroom and you have to spawn new compost. Then from the already spent compost, you can take some compost and put into the newer compost. You can get it colonized with the in place of spawn. Right, fungus will shift over to that, and you can get the good yield. Okay. I hope you get the point. Yes. Yes, sir. And sir, my last query, sir, like हम लोग जब भी बटन मशरूम बोलते हैं, like it's always the Agaricus bisporus. Sir, although there's one biter quiz जो higher temperature में like fruiting होता है. I mean, I just know that higher temperature में होता है. I mean, and जितना तक सुना उसका like shelf life भी थोड़ा ज्यादा होता है, and to some extent उसका browning का problem नहीं है. So after having so much advantages, why biter quiz is still not popular? You are absolutely right. Agaricus bitorquis is another species of agaricus, and that is also available with us and also with the Solon. Basically, it requires good hygienic conditions and pasteurized compost. So most of the growers which are growing such type of mushrooms, Agaricus bisporus, they have not perfect hygienic conditions. Even there are certain prolonged diseases. Number of times I have personally seen it, observed that some
high temperature diseases. I got the incidence of high temperature disease I truffle. So even so, that's the one problem. But it needs to be standardized. Technologies to yet to be standardized, and we have to go for strain improvement so that disease resistant strain, so that we can cultivate agaricus biotoropis at high temperature and get obtain good yield. This is a problem, nothing else. There is strain we have tried also. Okay. Yeah. So it's available with you, Bioterquis. Yeah. Okay. So for commercial purpose only. I mean, like if we want, we can Yeah, procure yeah. it. I have personally spawned agaricus bispol, but what I have observed, I told you. Yes. So it's require high cleanliness Okay, sir. and Yes. good compost, pasteurized compost, good pasteurized casing soil, all good conditions. Because at high temperature, there's a lot of incidence of molds also. Yes, sir. In high temperature, you might have observed more are the diseases, Yes, sir. more are the molds. So it has to compete with these competitor molds and diseases. So Correct. we have to complete sterilization, pasteurization is needed. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Sir, my question is, the button industry in a control unit is struggling between the production percentage of 20 to 22%. But I have seen, and one few of my friends are trying for a very small unit, having 4 to 6 tons of AC and damper and room insulation. They are using thermocol, having a bag capacity of 800 to up to 2000 bags in a unit. So just I want to ask you that is this kind of project is viable according to your experience? Yeah, there are a lot of farms are there with the small farms are there. This is viable, completely viable, and definitely we are getting yield from even 14-15% to 18-20%. And this I have observed, and add this conversion, mushroom unit is viable, economically viable, no issue. Even they have no pasteurization chamber, they are making compost through the long method. Yeah, they can. And getting the results. Yeah, it's possible. Yeah. Okay. Welcome. Excuse me, sir. Yeah. Sir, I have two questions actually. First of all, sir, जो basically tube based जो spawn होते हैं, क्या वो हम commercial purpose के लिए use कर सकते हैं? मुझे आपका point समझ नहीं आया, please. Sir, spawn actually दो तरीके का होता है, एक grain based, and the second one is that tube one, the liquid form. Okay, yeah. So can we use that liquid form spawn on in commercial purpose? बेसिकली जो बेसिकली जो लिक्विड स्पॉन की बात कर रहे हैं, दैट्स फॉर इनोकुलेटिंग ग्रेन्स और फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन, राइट? फॉर पुटिंग इनटू द डायरेक्टली इनटू द कंपोस्ट, it is not economical viable also. Okay. Right. Again, basically in agaricus, production of in agaricus or butter mushroom is practically it's not feasible. Okay. Yeah. And sir, yes, sir. Only for production of grain spawn, we can inoculate with liquid spawn. Right. Okay, sir. One more question. Though it is viable for button mushroom, can we have a controlled unit for this oyster mushroom as well, and can we reach the commercial feasibility? Yeah, definitely. If you are putting in a chamber in a environment which have optimum climate every time, you will obtain definitely good amount of mushroom.
perfect growth condition will promote more yield from the oyster mushroom. Yeah, but sir, unluckily, actually, I have not seen any kind of setup on various websites and in various channels. So, is there any unit who are producing oyster mushroom on commercial basis? Friends, there are in South India. There are lot of commercial farms are there, which are producing this oyster mushroom, and little bit they are modifying the climate. So, can we get some information about them also, if it is available and if it is possible? Yeah, you can contact our other centers are there all over India. You please contact our this project director at Solan. They will give you Okay, the whole list of the oyster growers. okay, sir. Okay, Yeah, thank you. welcome. Excuse me, sir. Yeah, yeah. सर ये बटन मशरूम का जो बल्क स्टेरिलाइजेशन चैम्बर होता है तो सर लाइक वो चैम्बर हम लोग अलग मशरूम जो सबस्ट्रेट होता है लाइक बीट शिटाके बीट ऑयस्टर मिल्की तो वो सब सबस्ट्रेट को स्टेरिलाइज या पेस्चराइज करने के लिए यूज कर सकते हैं Yes, yes. No issue. Same. We are using that. We are using that. ओके सर बिकॉज सर बटन में नॉर्मली हम लोग पेस्चराइज करते हैं तो मतलब फॉर ऑयस्टर मिल्क इट इज ओके बट दोज मशरूम लाइक शिटाके गैनोडर्मा जिसके लिए स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है तो द सेम दैट चैम्बर विल वर्क फॉर दैट सबस्ट्रेट आल्सो No, no, no. For shiitake, Nanoderma, basically we are using, we are autoclaving the material, right? yes That sir requires 100% this autoclaving and sterilizing, yes right? sir But in case of this padista mushroom, oyster mushrooms, we are pasteurizing material, right? We yes have sir tried, but we have tried for oyster and this one. मिल्की This milky, sorry, we have tried for Ganoderma and shiitake mushroom by putting the sawdust into this bulk pasteurization tunnel, but yes little sir success we obtained. okay Complete, yeah, because that the condition where we are putting the inoculum, that's not airtight. If you have completely airtight environment, after pasteurizing the substrate, when you are putting the seed in the spawn, that requires positive pressure, right? That must not have any other fresh air and all that thing. So yes uh, inoculum side is poor. So why we are not? Otherwise, you can completely pasteurize the material into the chamber and by steam sterilizing, and you can put into it. That can be done. But okay sir. commercially, I have seen autoclaving is the perfect one, and people are getting good yield after autoclaving the material. yes sir Thank you. thank you sir Sir, my question is, we have seen that after composting and spawning, we get some molds in our bags, even plaster mold, yellow mold, green molds, etc. And I have had means actually I have seen on the website of DMR some new cultural practices for button mushroom. That was the heading, and in that they have mentioned that phosphate solubilizing bacteria. That Yeah, means PSB. yeah. They have named Phosphotica something trade name. And that is used. That can be used before spawning in the ready compost, which can prevent the compost from the molds. Yes. So, is it? What is your opinion about this, sir? Definitely, this is the right information you have obtained from that site. It is there, and it is being promoted as well. But first, you definitely understand from where these are coming and why these are coming. Why this incidence is there? Plaster mold in compost. It shows that might have
it might have that good aeration may be lacking, maybe greasiness is more, moisture content may be more, or temperature of the growing room may have gone upper side. So first, is a you can see control. Before thinking of the control, eradication or prevention is good. Prevention is good. So prevent this one. Phosphatica is definitely giving good result. Okay, and the first session, Dr. Pooja from Betty Mushroom was asking that some bacteria are there which can be given to the compost at the time of the substrate preparation, Yeah. so that they activate the actinomycetes. That means mesophilic and thermophilic bacteria. From where we can get this, or can you suggest some trade names which we Basically, need to? yeah, okay. I understood your question. Basically, the mesophilic or thermophilic fungi which have been isolated and which are helpful in composting, that work has been done at Solon. And I don't know any address which are supplying at commercial level, but what I have suggested earlier, that your final compost which become ready for spawning have lot of required this mesophilic and thermophilic fungi known as fire fangs that are naturally available. You use that compost for better incorporation in the next compost load. But it is seen that they are in a low amount in case of long method composting, whereas we have seen that in ZDPT or in tunnel composting, they seems to be in large amounts. Yeah. So that's why I have asked that could we add on those at the time of composting so that we can get better results. Yeah, that's you can have from our Solon issue. Okay, thank you, sir. You can talk to them. Okay. Thank you. Excuse me, sir. Yeah. So, like I have read in some articles online, it's like it said that I mean, since button mushroom, that's agaricus strain, they like cannot grow on straw like milky or other Pleurotus species. That's why we prepared a compost. So, in that article, it was mentioned that the span substrate of any Pleurotus or any calocybic mushroom after the 3 flushes, we can use that span substrate for preparing the compost of the button mushroom. But sir, my question is that I mean, okay, I mean, after the 3 flushes, that material has to some extent it has got degraded. But about the nutrients, because if there is already 3 flush, that means the nutrient is almost gone. So is it, I mean, really, I mean, feasible? I mean, really worth it going using the spent substrate of those mushroom as a for preparing the compost? Yeah, you are welcome. Your question is very much right, and there are reports that is being the spent substrate of oysters are being utilized for producing compost for butter mushroom. Definitely, this compost is being prepared, and even spent compost of butter mushroom is being reused for producing new compost at to some extent. So these are the research issues, and that is being under consideration. And for sake of commercial purposes, you see the spent substrate of oyster, spent substrate of milky mushroom is being used to feed the kettles. Yes, sir. So that is value addition. So in the similar fashion, I have also seen that once you have grown the one oyster, if you are putting another oyster spawn into it after getting some yield, you are getting the successful mushroom, another mushroom. So there is compatibility. There are reports. Yeah.
Okay. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Nasir Sahab, I think as all questions have exhausted, and I am thankful to you, all of you again, and you for your patient hearing. Sir, Friends, thank you on behalf of the participants, thank you, and Maji sir. Thank also you. on behalf of the organizing committee, and Thank you. from all of us, we express our gratitude to you, sir, for being with us. It was Welcome, sir. it is always a pleasure, and we look forward to interactions like these going forward. Thank you, sir, for being with Thank us. you, sir. Everybody is. I'm thankful to everybody who is participating in the webinar. Any further query, you can contact my at my email address. Always welcome. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Majid sir. Hello. Hello. Mr. Majid. Hello. Yeah, Mr. Majid. I think sir has left because we have gone way over our time already. Majid ji.